Assalamualaikum students, welcome to my channel Chemistry Hub by HM. Today we are going to discuss hydrocarbons. So the word hydrocarbons actually made up of two words, hydrogen and the carbons. Hydro means hydrogen and the carbon means carbon. So the hydrocarbons are the compounds that are made up of hydrogen and carbon. So this is the definition of the hydrocarbons, and this is the simplest definition, the compounds that are made of hydrogen and carbon. Okay, next moving towards the classification of hydrocarbons. So the hydrocarbons are actually divided or into two different types. One is open chain hydrocarbon and the other one is closed chain hydrocarbon. So the open chain hydrocarbon is also known as the acyclic hydrocarbon. Means acyclic means A means no, A means no, and cyclic means cycle. So there is no cycle in them. While the closed chain hydrocarbon are also known as the cyclic hydrocarbons, means there is a cycle or there is a ring in the structure. As shown by the example, open chain hydrocarbons are the simplest long chain hydrocarbons that are made up of carbon and the hydrogen, and this is the example of butane and this is the example of propane. While the in closed chain hydrocarbon, as shown in the ring, cyclohexane, and it is made up of 6 carbons and 12 hydrogen, and it is present in the form of a cycle or it is form of a ring, so it is called as closed chain hydrocarbon or cyclic hydrocarbons. अगर आपने इसकी कोई और एग्जांपल लेनी है तो इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है. इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग, वो भी इसके एग्जांपल में आ जाएगा. ओके, नाउ we discuss the as we discuss types or the classification of hydrocarbon, which is open chain and the closed chain. Now moving towards the classification of open chain. Open chain hydrocarbons are also divided into two different types, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. As the word shows, saturated means there is no unsaturation in them, means the 4 valency of carbon is utilized. The 4 valency of carbon, which is in actual like this, is fully utilized. So by fully utilized means they are utilized by a single bond. So there is no double bond is or triple bond is present. So it is known as the saturated hydrocarbon and the single bond is present in them. So moving toward the example of saturated hydrocarbons, these are the example methane, ethane and propane, and many more: propane, butane, hexane, pentane and many others. Okay, the word meth is used for the one carbon and ane is used for the alkanes, means there is a single bond, and so we can say the ane word is mainly used for a single bond. Okay, okay, in ethane there are the 2 carbons, so it's eth means 2 carbons and ane means single bond. Like in propane, 3 carbons are present, so prop means 3 carbons and ane means it is used for the single bond. Okay, now moving toward the unsaturated hydrocarbons. In unsaturated hydrocarbons, there is no single bond. Why? Means there is a double bond or there is a triple bond is present in them. So we can say the 4 valency of carbon is not fully utilized. Means there is a double bond is present in them. There is a double bond is present in them, or we can say the double bond or triple bond is present in the unsaturated hydrocarbons. So the examples of double bond or the unsaturated hydrocarbons are ethene and ethyne. As I told you earlier, eth means 2 carbons and ene means here double bond. जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले कहा था, ane means single bond, means they are alkanes. So ene means double bond, means they are alkenes, anes. Okay, now eth is used for again the 2 carbons, and ine word is used. Ine is used YNE for the triple bond, so it is also known as alkynes. So in saturated hydrocarbons, only single bond is present. There is no double bond, there is no triple bond. While in unsaturated hydrocarbons, there is double bond or there is a triple bond is present. There is no single bond in them. Okay. These are the classification of the open chain hydrocarbon. Now we are moving toward the closed chain hydrocarbons and the classification of closed chain hydrocarbons. So the closed chain hydrocarbons are the carbons that are attached in the form of a ring or a cycle. That is why they are also called as cyclic hydrocarbons.
As I told you earlier here, they're also known as cyclic hydrocarbons. So these are the examples of cyclobutane, four carbon ring. So this is called as butane, and it is forming the form of cycle, so it is called as cyclobutane. Cyclopentane, 5 carbon ring, so it is known as the pentane, and it forming the ring, so it is called as cyclopentane. 6 carbon ring, 1 2 3 4 5 6, so it is known as hexane. 6 carbons ring or 6 carbon chain are known as hexane, as it is in the form of ring, so it is known as cyclohexane. Okay, and benzene ring, in benzene ring double bond is present, so it is also example in the closed chain hydrocarbon, but आगे जाके हम इसको मैं आपको डिफर करके बताऊंगी कि बेंजीन रिंग के अंदर और साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन के अंदर हम कैसे डिफर कर सकते हैं. Okay, now moving towards the classification or the different types of closed chain hydrocarbon. Okay students, the closed chain hydrocarbon are classified into 2 carbons. One is alicyclic hydrocarbon and the other one is aromatic hydrocarbon. We can say that we are classified the closed chain hydrocarbons, or we can say that we are classified a ring into 2 different types. Okay, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इन दोनों में आपको आगे जाके डिफरेंस बताऊंगी. सो वी कैन से वी आर क्लासिफाइड द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू 2 टाइप्स, और वी आर क्लासिफाइड ए रिंग इनटू 2 टाइप्स. सो द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. So alicyclic hydrocarbons are also known as the non-benzenoid cyclic hydrocarbons. Okay, non-benzenoid means there is no benzene ring in them. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि बेंजीन रिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये है बेंजीन रिंग. तो मतलब कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. सो दिस आर नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. So these are non-benzenoid cyclic hydrocarbons, means कि इसके अंदर हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है. बट स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, मीन्स कि इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेंजीन रिंग की वजह से जो है वो एरोमेटिसिटी आ जाती है, तो वो जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है. ठीक है, तो वन इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द अदर वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, यहाँ पे आपने ज़रा गौर से देखना है. द टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन आर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हमने नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता. जबकि हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है. सो मूविंग टुवर्ड द डेफिनेशन, बस सिंपल से अपनी बात में अपने जो है ना अपने जहन में ये बात रखनी है कि जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होना, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं. जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? उसको बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं. अपने कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखना है. जितना आप मिक्सअप करेंगे ना उतना आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैशअप होता जाएगा. ठीक है, okay. Now the definition of alicyclic hydrocarbons is the cyclic hydrocarbons which contain 2 hydrogen that is less than their corresponding open chain structure. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि देखें, आप इसको सोचिए. देखें, these are the cyclic hydrocarbons जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जो ओपन चेन इसका स्ट्रक्चर होगा ना उससे 2 हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे. ठीक है, ये जो है वो मैं आपको आगे एग्जांपल्स देके समझाती हूँ. ठीक है, और जो मैं पहले इससे ही एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जो है वो इसकी एग्जांपल आ जाएगी. अब देखें इसके पास जो है, देखें इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साइकिल. सो दे आर 3 कार्बन आर प्रेजेंट, सो इट इज़ नोन एज प्रोप एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, सो इट इज़ नोन एज एन. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इसको साइक्लोप्रोपेन क्यों कह रहे हैं, मतलब हम ये इसको क्यों कह रहे हैं कि ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है? हमने ये इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर जो है वो 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो कम है अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर से. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर हम इसके कार्बन्स काउंट करें 1 2 3, सो देयर आर 3 कार्बन्स इन देम. ठीक है, अगर हम इसके हाइड्रोजन काउंट करें तो 2 4 6, सो देयर आर 6 हाइड्रोजन्स इन देम. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम इसका जो है यहाँ से देख लेते हैं प्रोपेन, दिस वन इज प्रोपेन, इसका हम ओपन चेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं. 1 2 3 3 कार्बन्स इन प्रोपेन ओपन चेन स्ट्रक्चर. यहाँ पे हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसा करते हैं CH3 CH2
CH3, ठीक है। अगर हम इसके कार्बन काउंट करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे C जो है वो कितने हैं, 3, और अगर हम इसके हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो वी कैन से दिस डेफिनेशन इज ट्रू, मीन्स कि जो हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में जो साइक्लिक रिंग है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन कम है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है और उसके अंदर 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन समझने में भी जो है ना वो ईजी रहेगा। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोप्रोपीन, मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, ओके। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 हाइड्रोजन्स, मीन्स इसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, एंड 1 2 and 3, so it is known as prop, and इन मीन्स इट इज अ डबल बॉन्ड। अगर हम इसी तरह इसके प्रोपीन के ओपन चेन के अंदर और क्लोज चेन के अंदर इसके कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करें तो हाइड्रोजन इसके अंदर भी 2 कम होंगे, ठीक है। और साइक्लोप्रोपाइन आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या है, साइक्लो मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, प्रोप मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 कार्बन, एंड हाइड्रोजन और आइन मीन्स देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड इन देम, ठीक है। तो बच्चों कि ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये इसकी 3 एग्जाम्पल आ जाती हैं, साइक्लोप्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपाइन। इसके अलावा आप जो मर्जी एग्जाम्पल देते जाएँ, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटीन, हेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, कोई भी एग्जाम्पल लेते जाएँ इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम्पल में कोई भी ऐसा रिंग नहीं आएगा जिसके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ओके। Now, moving toward the aromatic hydrocarbons. As the word shows, the aromatic hydrocarbons or the benzenoid hydrocarbon, उसके अंदर benzene ring भी present होगा. So, we can say that these are the cyclic hydrocarbons that have benzene ring in the structure, ठीक है। देखेंगे बात तो यहाँ से फटाफट से क्लियर हो गई, ठीक है। और अच्छा, इसको हम एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास जो है ना वो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं, 1 2 and 3, और ये जो है ये क्या होते हैं, हर वक्त रेजोनेंस के अंदर रहते हैं, मीन्स दे आर मूविंग, मतलब ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ना वो एरोमेटिसिटी प्रेजेंट रहती है। सो वी कैन से दैट दे आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और ये इसका जो है ना मैंने ऊपर मतलब कि बिल्कुल एक मैंने इसके अंदर कोई भी कार्बन शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैंने एक कार्बन शो करके जो है ना वो एक स्ट्रगल रिंग बना दी है, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, ओके। द अदर एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज टोलोइन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या है, टोलोइन का क्या मतलब है कि बेंजीन रिंग भी है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके साथ हम एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं और एक ग्रुप लगा देते हैं, वी कैन से विच इज़ मिथाइल। हम बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल का ग्रुप लगा देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये टोलोइन है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये मिथाइल बेंजीन है, ठीक है। मिथाइल बेंजीन क्यों कहेंगे, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर और उसके साथ एक मिथाइल का ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम इसके साथ मिथाइल की जगह इथाइल का ग्रुप लगा देंगे तो हम ये कहेंगे कि वो इथाइल बेंजीन है, ठीक है। लेकिन उसका नाम टोलोइन नहीं होगा, उसका नाम इथाइल बेंजीन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम टोलोइन स्पेशल जो है ना वो स्पेशल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ मिथाइल का ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये मैंने शोन की हुई है यहाँ पे नेफ्थालीन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 2 जो है वो बेंजीन रिंग के ग्रुप जो है ना वो आपस में अटैच होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्थालीन कहते हैं। और एक एग्जांपल इसकी आ जाती है एंथ्रासीन। इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन रिंग के, दैट इज व्हाट इज नोन एज एंथ्रासीन, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसके क्लासिफिकेशन विच आर ओपन चेन एंड क्लोज चेन, ओके। द ओपन चेन आर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, व्हाइल द क्लोज चेन इज क्लासिफाइड इनटू एलिसाइक्लिक और द एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक इज आल्सो नोन एज द नॉन बेंजीनोइड रिंग, व्हाइल द एरोमेटिक इज आल्सो नोन एज द बेंजीनोइड रिंग, ठीक है। ये आपने मिक्स नहीं करना, बहुत ईजी टॉपिक है, मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे ईजी जो है ना वो सेकेंड ईयर की बुक में हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है, ठीक है। तो बस जब हम कोई भी चीज़ कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं तो वो हमें ईजी ही लगती है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी एग्जांपल के अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ यू। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स कुछ और मेंशन कर दूं तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको गाइड कर दूँगी। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।